जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय कुब्जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन निगम महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य गौर प्रेमानंद हरे बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नमस्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 11 and text 6 onwards for recitation today. Text 6. Tan hanyamanan abhiviksha guhyaka nanagam chitrarathena bhurisha ottan padi kirpaya pitamaho manurjagadopagata saharshivihi. तान अन्यमानान भिक्ष्यः गुह्यका ननागश्चित्ररथेन भूरिशा औत्तानपादि कृपया पितामहो मनुजगादोपगत सर्षविः। तान अन्यमानान विवीक्ष्य गुह्यका ननागश्चित्ररथेन भूरिशा औत्तानपादि कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगत सहर्षविः। सिनानियम। तान
those yakshas, Hanyamanana, being killed, Avikshya, seeing Guyakan, the yakshas, Anagasaha, offenseless, Chitrarathena, by Dhruva Maharaj, who had a beautiful chariot, Bhurishaha, greatly, Uttanapadim, unto the son of Uttanapada, Kirupaya, out of mercy, Pitamaha, the grandfather, Manuhu, Swayambhu Manu, Jagad gave instruction, Upagata approached Saharishi with great sages. आंखें में कमजोर हो गई, दिखाई भी नहीं दे रहा. Translation and purport by His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. When Swayambhu Manu saw that his grandson Dhruva Maharaj was killing so many of the Yakshas who were not actually offenders, out of his great compassion, he approached Dhruva Maharaj with great sages to give him good instruction. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurtamena Tasmai Sri Guruve Namah. Sri Chaitanya Manobhishtam Asthapitamena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Supadantikam Bandeyam Sri Guru Shatapadakamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tamsajeevam Sadhvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Saganam Lalita Sri Vishakhan Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namasute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishmana Shude Devi Pranamami Hari Priye Vangsha Kalpataru Vaishya Kripa Sindhu Vayevacha Prajitanam Pavanejo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnuvadaya Krishna Prishtabhudri Srimad Bhaktivedanta Swami Srimati Jayapataka Swami Nitinamine Namacharya Padaya Nitaya Kirpa Pradhane Gaur Gatha Thamadaya Nagar Gram Tarane Namo Vishnuvadaya Krishna Prishtabhudri Srimad Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sadhu Devi Gaurvani Pracharane Nivishnuvadi Pasati Tarane Jai Srila Prabhupada. तो प्रभुपाद की अनुकंपा से, गुरुजन वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से कृष्ण कथा अविरल बह रही है. जिन जिन्हों ने अपने दर्शन अभी तक हमें नहीं दिए, हमें दर्शन दीजिए, हम आपके दर्शन का लाभ उठाएंगे. परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ध्रुव महाराजा अटैक्ड अलकापुरी, द सिटी ऑफ यक्षास, because his brother was killed by one of them. अब आप देखिए, किसी एक व्यक्ति ने जो कार्य किया, उसकी पनिशमेंट 1,30,000 यक्ष सैनिकों को मिली. ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है. इसको क्या कहते हैं हम? कर्मों की गति. एक करे, दूसरा भरे. तो जैसे हम कहते हैं, कामना, वासना, लिया गया ऋण और अपने क्रोध, इनको कंट्रोल में नहीं करेंगे तो काफी मुश्किलें हो जाती हैं. तो ये पृथ्वी को छोड़कर ध्रुव महाराज अपनी अचिंत्य शक्ति से, सिद्धि से बिल्कुल अलकापुरी चले गए और वहां भी उनको मारने लगे. देखिए गुस्सा क्या होता है. गुस्सा ऐसी चीज होती है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. और तब यानी जो विवेकशील व्यक्ति भी होता है, वो भी कभी कभी अपने दायरे से बाहर चला जाता है. और जैसे आपको मालूम है, पहले गुस्सा आंखों में दिखता है, उसके वो गुस्सा जबान पे आ जाता है, और बाद में जब गुस्सा शरीर के हाथों पैरों में आ जाता है, तब उसका रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है.
ध्रुव महाराज को अपने भाई से प्यार तो था, लेकिन इतना भी नहीं कि कथलो गारत मचा दी जाए। तो क्रोधात भवति सम्मोहात, आदमी सम्मोहन में चले जाता है, अच्छे बुरा का पता ही नहीं चलता, और इस प्रकार दूसरों का नुकसान और अपना नुकसान हो जाता है। या कि हमास में देखिए, उन्होंने कुछ बच्चों को, इजराइल के कुछ बच्चों को मारा। अब कौन भुगत रहा है? साधारण लोग जो है, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या में मारे जा रहे हैं। क्यों? क्रोध में सम्मोहन हो जाता है, और सम्मोहन में मति विभ्रम हो जाती है, और जब मति विभ्रम हो जाती है तो आपको नहीं मालूम क्या करने का है। आगे प्रभा जी लिखते हैं, उत्तमा, ध्रुव महाराज ऑफ कोर्स took a very serious step when his brother was killed by the Yakshas. War was declared and the fighting was going on. एक बार उरुग्वाई में और पेरू में सब में एक फुटबॉल मैच था। फुटबॉल मैच एक पार्टी ने गोल किया, दूसरी पार्टी का ये गोल नहीं है। ये फुटबॉल फील्ड से लेकर ये झगड़ा बाहर आया। उस झगड़े में 2 साल तक 64,000 आदमी मारे गए, 64,000। हम क्या कहते हैं, कभी प्रभुपाद जी की कहानी है, कभी अगर 2 हाथियों में लड़ाई हो तो नुकसान किसका होता है? बगीचे का नुकसान होता है, बगीचे का नुकसान हो जाता है। तो ध्रुव महाराज ने वार डिक्लेयर कर दी। Sometimes this sometimes happens in the present day also, Prabhupada say. For one man's fault, a whole state is sometimes attacked. कई साल पहले की बात है कि दिवाली का दिन था। मेरठ में दुकानदार ने अपने सामने कैंडल जला रखी थी। एक छोटा मुस्लिम करीब 15-20 साल का लड़का आया, लाला से कहा मुझे ये सौदा दे दो। तो लाला ने सौदा दिया, और जैसे उसने पैसा देने का हाथ बढ़ाया तो एक मोमबत्ती गिर गई। एक मोमबत्ती गिर गई। दुकानदार को अच्छा नहीं लगा, दुकानदार ने उसको झापड़ मार दी कि हमारा त्योहार है, तुम इसको बुझाना चाहते हो। वो बच्चा जब रो रो के घर जा रहा था, लोगों ने क्या हो गया, क्या हो गया। बस दंगा हुआ, और उस दंगे में 8 लोग मारे गए। इसके कोई कसूर नहीं, मारे गए। कर्म गति टारे न टरे, ये चीजें हो जाती हैं। ये इसको समझ पाना भी बहुत मुश्किल है, और समझाना भी मुश्किल है, क्यों होता है, कैसे होता है, पर हो जाता है। तो प्रभात कहते हैं प्रेजेंट डे में भी ये हो रहा है। दिस काइंड ऑफ होलसेल अटैक इज नॉट अप्रूव्ड बाय मनु। स्वयं मनु ने देखा कि ये जो कर रहा है ना ये बच्चा, ये ठीक नहीं है। एंड हु वाज ही? द फादर एंड लॉ गिवर ऑफ द ह्यूमन रेस। इसने मनु संहिता बनाई है कि कैसे एक मनुष्य को व्यवहार करना है। तो जब उनका नाती ही इसका उल्लंघन करने लगा तो मनु महाराज आए। He therefore wanted to stop his grandson Dhruva from continuing to kill the Yaksha citizens who were not offenders. कभी आपने देखा होगा जब आपस में झगड़ा होता है तो हम यही बोलते हैं कि मेरा कसूर क्या था, बताओ मेरा कसूर क्या है। और कसूर क्या होता है वो आज का नहीं होता है, वो पिछले दिन का या पिछले सालों का होता है, और उसमें हम लड़ मरते हैं, अपने अपने सिंह तोड़ डालते हैं। तो क्या शिक्षा मिलती है? इस
परपोर्ट से या श्लोका से शिक्षा मिलती है कि हमें कंट्रोल में रहना है, अपने इंद्रियों को बस में रखना है। क्रोध जो है, काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध लोभ ये हमारे नर्क के रास्ते हैं। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं, कोई जानना भी नहीं चाहता है कि नर्क में क्या होगा। जब पढ़ो तो डर लगती है थोड़ी सी, कुछ मिनट के लिए, उसके बाद कोई डर नहीं। लेकिन हमें डरना है। हम ये नहीं चाहते जो हमारे साथ आज हो रहा है, जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, दुख है, दोष है, इनसे निकलने के लिए, इनसे पार पाने के लिए, चाहे उसको आप मोक्ष कहें या हमारे शब्दों में उसको भक्ति कहें, ये करना अति आवश्यक हो जाता है। और भक्ति में जैसे क्या है कि आपने धन कमाया, पैसे कमाए, वो पैसे आपके बच्चों के काम आएंगे, उनके बच्चों के काम आएंगे। ठीक इसी प्रकार भक्ति की जो संपदा है वो हमारे बच्चों तक जाएगी और आगे तक जाएगी। वो उसका उपभोग करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। लेकिन हमारी धन संपदा सिर्फ आने वाली पीढ़ी के लिए होती है, और लेकिन भक्ति हमारे पीछे, हमारे एंसेस्टर के लिए भी होती है, उनका भी उद्धार होगा। इसलिए भक्ति करना बहुत आवश्यक है। समाज के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए हर व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम। हमें न यज्ञ छोड़ना है, न तप छोड़ना है, न दान छोड़ने, न कर्म छोड़ना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कर्म करेंगे तो बंधन होगा। हाँ, बंधन जरूर होगा। कई बार हमें उदाहरण दे चुके हैं। खैर आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गई है, लेकिन पहले हम क्या करते थे, अपने कपड़े धुलते थे, कपड़े को पानी में भिगोया, उस पर साबुन लगाया, साबुन से रगड़ा और फिर उसी पानी में डाल करके उसको ऐसा झाड़ा कि उसमें साबुन की जो है एक कतरा न रह जाए, साबुन बिल्कुल साफ हो जाए। ठीक इसी प्रकार है हमारे जो कर्म है, मैं विकर्म की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे जो कर्म है, और अकर्म की बात नहीं हो रही है, जो हमारे कर्म है, हमारा शरीर को उन कर्मों से धुलना तो पड़ेगा ही, इसकी जरूरत है। लेकिन तत्पश्चात उन कर्मों को भी निकालना है, समाप्त करना है। और समाप्त करने के लिए यज्ञ दान तप कर्म ये आवश्यक है। लेकिन इस कली के जमाने में जहां दोष ही दोष है, कलिमागत माग ना आया ना, कलो दोषे निधि राजन, इसमें दोष ही दोष है। और हम अपने आप को दोषी पाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं कि इस दोष से मुक्त कैसे हो जाए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनमः तम नमामि हरि परम। ये संकीर्तन यज्ञ के, तो यज्ञ है फिर भी, हाँ, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हम अपने पाप और पुण्य से प्रायश्चित कर, समाप्त कर वैकुंठ धाम जा सकते हैं, या अपने इर्द गिर्द ही वैकुंठ बना सकते हैं। जहां हरि का नाम होगा वही वैकुंठ है। वैकुंठ यानी कुंठा, परेशानी, चिंता न हो, वही वैकुंठ है। आज के समाज में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई चिंता नहीं, कतई कोई चिंता नहीं। भगवान के प्रायण हो जाने पर चिंता समाप्त हो जाती है। अदरवाइज एतथि आतुर चित्ता नाम मात्रा अस्पर्शे क्षया मुहु भव सिंधु फलवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। या आप हरि की चर्या का स्वाध्याय करें, उसका प्रचार करें,
या हरि के नाम की माला जापें, तभी जाके मनुष्य योनि में पाकर हम जो है अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठति राजसा जगन्य गुणवर्ती स्था अधो गच्छति तामसा। हमारे जो गुण हैं, सत्गुण होकर हम अपनी आत्मा को ऊपर लेके जा सकते हैं। रजोगुण में फिर हमें इसी पृथ्वी में रहना पड़ेगा, चाहे मनुष्य रहें, चाहे जीव रहें, चाहे जंतु रहें। अधो गच्छति तामसा। और जो हमारा इग्नोरेंस है, जो हमारा रजोगुण में ना 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 सत्व रज तम तम गुण में हम लोग नीचे चले जाते हैं। प्रभु ने कल कहा कि जयपताका स्वामी महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, तो पता चला कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, लेकिन महाराज बोलते बोलते कुछ शब्द भूल रहे हैं। जैसे क्लास दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, कुछ शब्द भूल रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि शायद इसमें दिमाग के अंदर कोई जो है जो ब्लड है वो थिक हो गया हो, इसलिए बात हो रही है। महाराज इतने साल से बीमार हैं, अब वो शब्द भूल रहे हैं, और हम सशरीर होते हुए भी बहुत सारी चीजें भूल रहे हैं, बोलते समय, समझते समय। यही ये मृत संसार है। सब चीजें हमेशा साथ नहीं देती हैं, परिवर्तन ही परिवर्तन है। लेकिन हम क्या सकते हैं? हम समझते हैं कि हम सही हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम। हमारे सामने हजारों शरीर नष्ट हो चुके हैं, और अधिकतर वो सब नर्क लोग जा चुके हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। अभी तुम खाएंगे, पिएंगे, मजा करेंगे, ऐश करेंगे और अपना दिन गुजारेंगे। नहीं, ये ऐशो आराम ही हमारा बंधन है, और बंधन से आप मुक्त खुद नहीं हो सकते हैं। किसी और को आपके बंधन छुटाने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। तो हमारे लिए हमारे गुरुजन हमारे बंधन छुटाएंगे, लेकिन क्या वो हमारे सामने होंगे? नहीं। उनके द्वारा दिए गए जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं का अगर हम अनुपालन करेंगे, उनके द्वारा हमारे बंधन खुल जाएंगे। ये वो शिक्षाएं हमारा बंधन खोलेंगी। हम अपने हाथ से, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। क्या धनी से धनी व्यक्ति हो, अपने बंधनों से कुछ छुटकारा नहीं पा सकता है। और कोई मनुष्यगण, चाहे परिवार हो या दोस्त हो, वो भी इस बंधन से छुटकारा नहीं पा पाए। उसका छुटकारा पाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जो आध्यात्म में हो, जैसे उदाहरण दिया जाता है, कोई नदी में डूब रहा हो, समुद्र में डूब रहा हो, और 4-5-6 दोस्त हो डूब रहे हो, ये एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं। कोई बाहर से आदमी जाए जिसको तैरना आता हो, या कोई बोट हो, तब जाके उनको रेस्क्यू किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो बहुबंधन है, जो कई सालों से चला आ रहा है, उसे निकलने का तरीका हमारे पास नहीं। गुरु की कृपा के द्वारा, वैष्णवों की कृपा के द्वारा, हमारे स्वाध्याय के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे यज्ञ के द्वारा, हमारे तप के द्वारा, हमारे दान के द्वारा और हमारे कर्मों के द्वारा हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वरना देखिए, ध्रुव महाराज, जिनको बचपन ही भगवान के दर्शन हो गए, उनको भी गुस्सा आ गया। जब तक हम भौतिक संसार में रहेंगे, इन चीजों से पार पाना बड़ा मुश्किल है। भौतिक देह है,
पार पाना बड़ा मुश्किल है। उनको समझाने के लिए उनके पितामह आ रहे हैं, मनु आ रहे हैं, पितामह आ रहे हैं। क्योंकि जब आदमी गुस्से में होता है तो अपने आप को नहीं समझ पाएगा, दूसरे समझाते हैं, ये समझाना पड़ता है। और हमको तो हमारे गुरुजनों ने, वैष्णव ने समझा दिया है। अब हम समझ ही नहीं रहे हैं तो, हम वो कार्य कर ही नहीं रहे तो क्या किया जा सकता है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और दूसरे श्लोक में भी नहीं जाना चाहता हूं मैं, क्योंकि इसमें बड़ा अच्छा परपोर्ट है और जो हमारे आने वाले अगर वैष्णव हैं उस पर अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। तो लीजिए, प्रभु मैं वाणी प्रभु को जी, आपकी तबीयत ठीक है तो थोड़ा सा डिस्कशन करते ना प्रभु जी। आप तो फिर हाँ छुट्टी चले मैं बिल्कुल दूसरा दूसरा श्लोक ले सकते तो प्रभु लीजिए ना प्रभु, आज तो फ्राइडे प्रभु, अगर ले सकते ओके। तो, अगर तबियत ठीक ठीक नहीं तो फिर छोड़ दीजिए प्रभु। नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं। लीजिए नंबर 7, मनुर्वाच अलम वस अलम वत्सातिरूपेण तमोद्वारेण पाप्ना येन पुण्य जनानेन तान्यावधीस्त त्वमनागसः। सीधा उसमें जाऊंगा। Lord Manu said, "My dear son, please stop. It is not good to become unnecessarily angry. It is the path to hellish life. Now you are going beyond the limit by killing yakshas who are actually not offenders." प्रभुपाद जी लिखते हैं, in this world the word atiroshena is with unnecessary anger. पता नहीं आपने कभी अतिरोषण देखा कि नहीं देखा, लेकिन जब कहीं क्रिकेट मैच होता है और जिसकी अपनी प्यारी टीम हार जाती है, वो अतिरोषण करके घर में अपना टेलीविजन तोड़ देते हैं, बाहर आकर के आग लगा देते हैं और इतना हुजूम मचाते हैं कि लोग कहते ये क्या हो गया। तो ये है अतिरोषण। या घर में जैसे बच्चे कभी नाराज हो जाएं तो उठा करके बर्तन को पटकने लगते हैं, इधर से उधर फेंकने लगते हैं, अतिरोषण। और इस अतिरोषण का शिकार हम भी हो जाते हैं। कैसे? मान लिया जाए हमें कोई चीज पसंद नहीं आई, अब प्रपात की शिक्षाएं तो मिली हैं, अब हमें उद्यम तो नहीं मचा पाते हैं, हम चुप हो जाते हैं, हम किसी से बात नहीं करते। आप समझ गए? हम चुप हो जाते हैं, न किसी से लेना न देना, न किसी से बात करनी, अतिरोषेण। हमारी जुबान पे शब्द न हो लेकिन हमारे मन में ज्वाला तो फटी हुई है ना, अतिरोषेण। ये जो रोष है इसकी क्या जरूरत है? और जनरल कहा जाता है, जनरल कहा जाता है जो लोग बेवकूफ होते हैं वो उनको ज्यादा रोष आता है, जो बेवकूफ होते हैं। तो मान लिया जाए कभी आपको और मेरे को गुस्सा आ गया तो मान के चलो हमसे ज्यादा बेवकूफ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता है। ये दुविधा है, हम कहां समझ पाते हैं? हम समझते हैं हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम चुपचाप रहेंगे, हम किसी से कुछ नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जो आप चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो अपने शरीर को आप जला रहे हैं। तो ये आप अपने शरीर को अंदर से जलाएं, ये बाहर से जलाएं, लेकिन जो चीजें जब पसंद नहीं आती है तो अतिरोषण हो ही जाता है। तो मनु महाराज कहते हैं, अरे भाई ये क्या है, ये अननेसेसरी एंगर। चलो ठीक है। अच्छा, कभी कभी हमारा एंगर जैसे छोटे बच्चों को होता है या स्त्रियों को होता है? कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए वो चलता है, लेकिन यहां जब हमारा गुस्सा होता है ये दिनों महीनों और सालों चलता है।
तो इसे मनु कहते हैं, हेमंत महाराज कहते हैं, अरे भाई जो तू कर रहा है, दिस रोड टू द हेल, ये पाताल नर्क जाने का तरीका है, क्या तुम कर रहे हो। लेकिन उनको मालूम है, खैर इनके लिए तो पहले स्थान निश्चित है, लेकिन फिर भी उनको अच्छा नहीं लगा। तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और हम क्या कहते हैं, अरे यार वैष्णव अपराध हो जाएगा, हम नहीं बताएंगे हम नहीं बोलेंगे। जो चीज गलत हो रही है उसको गलत ठहराना कोई अपराध नहीं है। गलत को गलत ही कहिए, सफेद को सफेद ही कहिए, काले को काला ही कहिए। जबरदस्ती काले को सफेद मत बनाइए और सफेद को काला मत बनाइए। तो इसमें कोई अपराध नहीं है ये कहने के लिए कि जो आप कर रहे हो ये शास्त्र सम्मित नहीं है, ये शायद गलत है। किसी को एहसास दिलाना चाहिए, गुस्से में पता नहीं चलता है। आपने देखा होगा जब बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं, हम उनको पकड़ते हैं, उनको अंकित करते हैं, अपने अंग में भरते हैं, उनके सर को सहलाते हैं, बोलते हैं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि समझ और समझाने के लिए ये जरूरी है। तो प्रभुपाद यही कहते हैं, आउट ऑफ लिमिट। His grandfather Swayam Manu immediately came to protect him. देखिए उसका धनुष है, उसका बाण है, उसका शक्ति है, लेकिन यहां पे प्रभुपाद कहते हैं टू प्रोटेक्ट हिम। जो दूसरों को, जिसको दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए उसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम फर्दर sinful action. From this we can understand that killing is not bad, but when killing is done unnecessarily, or when an offenseless person is killed, such killing opens the path to hell. Dhruva Maharaja was saved from such sinful action because he was a great devotee. कभी आपने देखा होगा जिसको आप बहुत अच्छा भक्त मानते हैं, समझते हैं, कभी कभी उनके द्वारा किए गए कार्य आपको लगेगा यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसी विडंबना है। जिनके पदचरणों पे हम चलने की कोशिश करते हैं वही जो है दुर्गम पथ पे चल रहे हैं, क्या होगा। तो कभी कभार भगवान भक्तों की परीक्षा लेकर ये सुदृढ़ करते हैं कि यह भक्त बन पाए, ये क्या मेरे धाम जाने के लिए सुदृढ़ हैं, ये जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए कई बार भक्तों के जीवन में ऐसी बातें आती हैं जो कभी न सोचा, न समझा, न जाना, न पहचाना। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, ये क्षत्रिय इज अलाउड टू किल ओनली फॉर मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड द ऑर्डर ऑफ द स्टेट, एंड लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट either by the judges or by the military force. He is not allowed to kill or commit a violence without the reason. ये प्रभुपाद जी बताओ क्यों लिख रहे हैं कि प्रभुपाद ने अपने जीवन में ये देखा है। जब प्रभुपाद जी छोटे थे, छोटे बच्चे थे, करीब 7-8 साल के, वो कहीं घूमने चले गए, उन्होंने क्या देखा, दूसरे पक्ष के लोग तलवारें लेकर एक दूसरे को काट रहे हैं, पत्थर लेकर एक दूसरे को मार रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने जब हुजूम को देखा वो भागे और भागते भागते बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचे, दरवाजा बंद किया और तब उनके पिता ने और माता ने सुख की सांस ली कि इस वायलेंस में ये बाहर क्यों गया, कैसे बच गया। तो प्रभुपाद जी ने जो सुना, जो देखा, वो कहते हैं कि commit violence without any reason. Violence is certainly a path leading to the hellish conditions of life. और कौन सा वायलेंस?
एक तो हम अपने हाथों से वायलेंस करते हैं, दूसरे अपने मन से वायलेंस करते हैं, कर्मों से वायलेंस करते हैं। तो इन सब से हमें बचना है। बट इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट। तभी तो कहते हैं कानून अपने हाथ में मत लो। आप सिर्फ प्रोटेक्शन मांग सकते हो, लेकिन आप वो ना कीजिए। हमें वो नहीं करना चाहिए। जो लॉ अवॉइडिंग पर्सन जो हैं, जो जो ऑथोरिटीज हैं, ये काम उनको करना चाहिए। आगे प्रपोज देखते हैं। हियर लॉर्ड मनु, देखिए मनु को भी लॉर्ड कहा गया है। लॉर्ड यानी ही हु प्रोटेक्ट्स, जिसमें स्वयं मनु को कभी लॉर्ड नहीं कहा गया है, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं लॉर्ड मनु, लॉर्ड यानी ही हु प्रोटेक्ट्स। और इस वक्त क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो यक्षों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो ध्रुव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। समहा, जो लॉर्ड होता है वो सम है, सबके लिए बराबर है। तो यह स्वयं मनु दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यक्षास को भी और अपने ग्रैंडसन ध्रुव महाराज को भी। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, here the Lord Manu prohibits Dhruv Maharaj from killing the Yakshas because only one of them was punishable for killing his brother Uttama. Not all of the Yakshas, citizens, were punishable. We find in modern warfare, however, that attacks are made upon innocent citizens who are without fault. हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया यूक्रेन का, रशिया का, इजराइल और हमास का। और कई बार आपने ऐसे वायलेंस में देखा होगा अपने जीवन में, जो है अननेसेसरी, जिसकी जरूरत नहीं है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा अर्थामिति मन्यते। अहंकार में हम समझते हैं मैं करने वाला हूं, मेरे द्वारा ये कार्य होने चाहिए। हम प्रकृति के अधीन अपने गुणों के द्वारा, अपनी रुचि के द्वारा वो समझते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं सही हूं। Furthermore, at the present moment, civilized nations are unnecessarily maintaining the slaughterhouses for killing innocent animals. आज तक हम क्या समझते हैं कि मनुष्य जाति में ये जो किलिंग है, अननेसेसरी किलिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए प्रभुपाद को देखिए, वो कहते हैं खाली मनुष्य जाति ही नहीं, इवन जो जानवर हैं उनको भी जीने का अधिकार है। हम उनके अधिकार को क्यों छीने? अपनी टंग टेस्ट के लिए हम उन इनोसेंट एनिमल को मार देते हैं और बुरी तरह मारते हैं। मैं इस वक्त बोलूं तो बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिंदा जीव उनकी जो है चमड़े निकाल दी जाती, जिंदा जी चमड़े निकाल दी जाती। पहले उनको गर्म पानी से नहलाया जाता है, गरम गरम पानी से, और फिर उनको जो है एकदम ठंडे पानी से नहलाया जाता है। और वो जिंदा है और छुरी लेकर के फौरन उनकी स्किन को निकाल देते हैं और पूरा उनको जीते जी तब मरते हैं। ये है इनोसेंट किलिंग ऑफ द इनोसेंट एनिमल। आई डोंट नो मैंने आपको ये बात क्यों कही, लेकिन प्रभुपाद जी ने लिखा, मैं समझता हूं कि क्यों लिख रहे हैं कि मैनी स्लॉटर हाउसेस फॉर किलिंग इनोसेंट एनिमल। व्हेन ए नेशन इज अटैक्ड बाय इट्स एनिमीज, the wholesale slaughter of the citizen should be taken as a reaction in their own sinful activities. That is the nature of law.
कृष्ण प्रभु हैं शायद क्लास में। एक बार कई साल पहले जब सुनामी आई और बहुत सारे लोग, हजारों लोग शायद मारे गए, तो कतर में भी एक इन्होंने एक ग्रुप ने बोला कि चलो हम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ पैसे इकट्ठे करने चाहिए, ऐसा कुछ था। और मेरी भागवतम क्लास थी और मुझे कहा गया आप भी चलेंगे? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बोले थोड़े पैसे इकट्ठे करने। मैंने कहा जरूरत भी नहीं है, आदमी मारे गए हैं, बहुत दुख है। लेकिन वही आदमी जब हजारों लाखों फिशेस को मारते हैं, स्लॉटर करते हैं, तब जाके हम उसका बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? खैर, कुछ हमारे जो दोस्त थे उनको अच्छा नहीं लगा, देखिए हमें ये काम करना चाहिए। लेकिन हमने यही सोचा कि ये तो कर्मों का फल है, इसके लिए कितना दुख, 400-500 आदमियों के लिए दुख, ये 1000 आदमियों के लिए दुख, लेकिन जो करोड़ों जीव मारे जा रहे हैं उनके लिए क्या? उनके लिए हमारे दिल में भावना क्यों नहीं? नहीं, जो पशु हैं वो मारने के लिए बनाए जाते हैं। कहानी भी है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। देखिए कितना शानदार उदाहरण लोग देते हैं कि हमने तो उनको मारना ही है, खैर कब तक मनेगी। आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ये सब इसी का विधान है। हम गलत कार्य करते हैं और उसके लिए कई बार हमको भी कष्ट मिलता है, हमको भी दुख सहना पड़ता है। तो अगर हम प्रभुपाद जैसे महानुभावों के कथनानुसार अपने जीवन को चलाएं और वो सब बंद करें, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, उसके लिए हजारों प्रकार के हमारे पास अन्न है, सब्जियां हैं। लोग कहते हैं भाई क्यों उन पे प्राण नहीं होता है? अच्छा, आप किसी लिए भिंडी को ले लीजिएगा, आपकी थाली में भिंडी है, क्या आप उसको पहले रस्से से बांधते हैं कि मैं इसको काटने वाला हूं कहीं भाग ना जाए? क्या वो भिंडी चिल्लाती है? नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए बन गया। जीव जीव से भोजनम, जीव जीव से भोजनम। तो मान के चलो कि हमारे लिए कुछ बनाया गया है। जो सब्जियां हैं ये एनीवे 3-4 महीने के बाद उनका पौधा अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ये हमारे लिए बनी हुई है। तो अगर जैसे मैं कह रहा था, प्रभुपाद जैसे महान भावों के कथनानुसार अगर हम अपने समाज को बदल डालें तो यही कली हमको सत्ययुग लगने लगेगा, कली का प्रभाव नहीं होगा। और इस प्रकार हम अपनी रक्षा करते हुए सबकी रक्षा करेंगे। और कहते हैं कंपैशन, हम जब भी कहते हैं कंपैशन का मतलब क्या होता है? मनुष्य जाति के लिए। आपने देखा होगा, राम राज्य की मैं बात करता हूं, एक बार भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ रात को निकले ये पता करने के लिए कि मेरे राज्य में सब खुशहाल हैं, सुख है, समृद्धि है। दोनों भाई रथ पे निकले, थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा एक कुत्ता रो रहा था। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, आधी रात में कुत्ता क्यों रो रहा है? तो कुत्ता से पूछा गया, तब लोग जवान जानवरों की भाषा समझते थे। तो कुत्ता ने कहा एक जो मठाधिकारी है, एक जो व्यक्ति है मंदिर का, उसने मुझे डंडे से मारा है। तो भगवान ने कहा ठीक है, कल सुबह तुम हमारे दरबार में आओ, शिकायत करो, हम उसको पूछेंगे क्यों हुआ। दूसरे दिन सुबह सभागार समझाया गया,
सजाया गया। भगवान राम बैठे हैं अपने सिंहासन पे। वो जो पुजारी था, जो कॉमन व्यक्ति था, उसको बुलाया गया। कुत्ते से कहा गया बोलो। कुत्ते ने आप बीती बताई और उसने कहा तो कौन सी बड़ी बात है, कुत्ता ही तो है। अरे मैंने किसी आदमी के लिए, किसी सज्जन पे तो ऐसे वार नहीं किया। अगर मैंने कुत्ते पे वार कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है भाई, ये जानवर होते ही इसके लिए हैं। राम जी बड़े दुखी हुए। राम जी ने कहा नहीं, तुम्हें हमें जो है पनिशमेंट तो जरूर देंगे क्योंकि तुमने दोष किया है। लेकिन भगवान नहीं समझ पाए कि इसको क्या क्या मैं इसको कष्ट, क्या मैं इसको पनिशमेंट दूं। तो भगवान ने कुत्ते से कहा अच्छा तुम ही बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए, क्या दंड देना चाहिए। कुत्ते ने कहा हजूर इसको मठाधिकारी बना दो, किसी मठ का अधिकारी बना दो। भगवान हैरान, मठाधिकारी बना करके तुम्हें क्या फायदा होगा। बोला सर पहले मैं भी मठाधिकारी था और मैंने गलत काम किए तो कुत्ते की योनि मिली। मैं चाहता हूं ये भी मठाधिकारी बने और ये भी बाद में कुत्ते की योनि इसको मिले। तो ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि जानवर सारे लात मारने के लिए नहीं होते हैं। किसने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी आप साथ में लट्ठी क्यों रखते हैं। प्रभुपाद ने कहा कुत्तों को भगाने के लिए, मारने के लिए नहीं, उनको भगाने के लिए। आपने देखा होगा कई बार कोई बिल्ली है नजदीक है, आप उसको लात से भगाते हैं। किसी ने हाथ से उठा के उसको अलग नहीं रखा, लात मार के भगाते हैं। अब यहाँ तो कहीं बिल्ली मिलती है, कुत्ता तो मिलते नहीं है। लेकिन हमारे शहरों में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो बेचारी गायें हैं सड़कों में आती हैं, कुछ आती हैं तो उनको लात मारते हैं, उनको डंड मारते हैं। समझते हैं ये पशु जो है ना, ये प्रताड़ना का अधिकारी है। ढूल क्या बोलते थे, ढोल गंवार पशु शूद्र और नारी है ताड़न के अधिकारी। तो हम भी तो यही करते हैं। हम किसी अकेले हैं क्या। तो हमारे ये क्या कंपैशन है, कोई कंपैशन नहीं कि हम अपने आप को भी धोखा देते हैं और समझते हैं हमारे अंदर ये कंपैशन आ गया। सब जीव के ऊपर कंपैशन होगा तब जाके बात बनेगी भाई। बच्चों पे तो कंपैशन होगा ही, अपने दोस्तों के साथ कंपैशन होगा ही, अपनी जो हमारी सोसाइटी लेटेस्ट हम इस्कॉन के डिवोटी हैं उन पे तो कंपैशन होगा ही। आगे क्या, आगे भी होना चाहिए भाई, बिना उसके नहीं काम चलेगा। तो प्रभुपाद ने बहुत शानदार लिखा है, बहुत शानदार लिखा है। The wholesale slaughter of the citizen should be taken as a reaction to their own sinful activities। जैसे हमने कई बार कहते हैं हमारे जो कर्म है, इंडिविजुअल कर्म है और कलेक्टिव कर्म है। दो प्रकार के कर्म है, एक तो हमारे इंडिविजुअल कर्म है जिनका सजा मिलती है, एक हमारे कलेक्टिव कर्म है, किसी ने कुछ कर दिया और डंडे हमको भी पड़े, ये है कलेक्टिव कर्म। तो इन सब से बचने के लिए, इनसे पार पाने के लिए भगवान की शरणागति ही एक केवल सहारा है और कुछ भी नहीं। इस वाणी के साथ भगवान की शरणागति करें और अपने जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू।